Welcome my students and my viewers once more. In today's video I am going to take some more figures of speech which are very important for TGT examination, PGT exam, STAT exam, REIT exam or any other KV or UGC NET exam. 10 figure of speech that are very basic I have already discussed in my previous video, and I had given examples from class 9th, 10th, 11th and 12th books. Okay, some examples I had given from literature. Okay, now in today's figure of speech I am going to take first anticlimax or bathos. My viewers, if you have not watched my previous video on figures of speech, you can watch it. It is available on my YouTube channel, Easy English NCERT E-Learning with Chandrapal. Now, anticlimax or bathos. It denotes a writer's deliberate drop from the serious or elevated to the trivial or lowly in order to achieve an intended comic or satiric effect. तो anticlimax बैथोस भी होता है, और ये राइटर का एक तरह से राइटर है, वो किसी गंभीर बात से गिर जाता है केवल हमें हंसाने के लिए और कोई व्यंग करने के लिए. एग्जाम्पल क्या है? आना डज समटाइम काउंसिल एंड समटाइम टी. तो इन लाइनों के अंदर है वो राइटर ने एंटी क्लाइमैक्स से वो यूज किया है. या फिर इसका एक और एग्जाम्पल है, व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइस, what cats averse to fish. So these lines are from Thomas Gray poem Ode on the Death of a Favorite Cat. Now next figure of speech is litosis. Okay, litosis is a type of understatement, the assertion of an affirmative by negating its contrary. तो कोई भी बात है वो हम एफर्मेटिव में ना कहते हुए नेगेटिव वे में कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मीनिंग ही इज ए स्टूपिड. तो हमने सीधा उसको एक प्रकार से एफर्मेटिव में ना कहते हुए उसको एक प्रकार से हमने गाली दे दी है. तो नेक्स्ट है आयरनी. आयरनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच. यू कैन सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी. ओके, in literature, okay, in novels, in short stories. It is a very basic figure of speech. Irony means a word or a phrase that says one thing and means another, or when a word or phrase has one surface meaning and another contradictory meaning beneath this surface meaning. Okay, this figure of speech is called then irony. For example, I have given very good example from Jane Austen's novel Pride and Prejudice. Its opening line are an example of irony. It is a truth universally acknowledged that a man in the possession of a good fortune must be in want of a wife. Okay, this is opening line of Jane Austen's novel Pride and Prejudice. Or there is one more example from Alexander Pope's famous mock epic The Rape of the Lock. Whether the nymph shall break Diana's law, or some frail china jar receive a flaw, or stain her honor, or her new brocade. Okay, or her new brocade. This word is or a new brocade. Okay, or her new brocade. Next figure of speech is it is a part of irony. Irony of situation. Irony of situation means when a set of circumstances turn out to be reserve of those anticipated by the main protagonist. तो जब कभी भी जो हमारा मेन कैरेक्टर और प्रोटैगोनिस्ट होता है वो कुछ सोच रहा होता है कि चीजें इस प्रकार से घटित होंगी, लेकिन उससे बिल्कुल उलट घटित हो जाता है, तो उसको हम आयरनी ऑफ द सिचुएशन कहते हैं. अब नेक्स्ट है ड्रामेटिक आयरनी. अब ड्रामेटिक आयरनी
ड्रामा में होगा ओके, ड्रामेटिक आयरनी मीन्स ए सिचुएशन इन ए प्ले or in a narrative in which the audience or the reader share with the author's knowledge about the present or the future circumstances of which a character is ignorant. In that situation, the character unknowingly acts in a way we recognize to be grossly inappropriate to that actual circumstances. तो ड्रामेटिक आयरनी के अंदर एक करेक्टर है, वो इस प्रकार से बिहेव करता है कि हम ये एंटिसिपेट नहीं करते कि उसको ऐसा करना चाहिए, और रीडर्स को और ऑडियंस को ये पता होता है, स्पेक्टेटर्स को पता होता है कि वास्तव में ये घटना हुई है। अब ड्रामेटिक आयरनी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है सरकाज़म। क्या है? सरकाज़म इज समटाइम यूज एज एन इक्विवेलेंट फॉर आयरनी, बट इट इज बेटर टू रिस्ट्रिक्ट इट टू द क्रूड टाउंटिंग यूज ऑफ apparent praise for dispraise। ओके, तो कई बार हम प्रेज करने की बजाय उसका डिसप्रेज करते हैं, तो उसको सरकाज़म बोल देते हैं। क्या है? ओ यू आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू वीमेन, यू आर। ओके, तो हमने यहाँ पर एक प्रकार से सरकाज़म है वो यूज किया है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स। ओके, पैराडॉक्स इज a statement which seems on its face to be self-contradictory or absurd, yet it turns out to be making a good sense. It turns out to make a good sense। तो पैराडॉक्स के अंदर दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है और वो ऊपर से हमें बिल्कुल कंट्राडिक्टरी और अब्सर्ड लगता है, लेकिन उसका फिर भी एक सेंस होता है। इट इज़ ए सेंट्रल डिवाइस फॉर 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्स, और मेटाफिजिकल पोइट जो 17th सेंचुरी के हुए हैं, जॉन डन। ओके, जॉन डन और दूसरे जॉन सकलिंग। ओके, उनकी पोएम्स के अंदर है वो पैराडॉक्स हमें मिलता है। इन हिज पोएम जॉन डन gives an extended proof of paradoxical thesis when he says sexual lovers are saint। ओके, ये कैनोनाइजेशन पोएम है, वहां से लिया गया है। अब क्या है? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पन। तो पन, ए पन ऑन वर्ड्स that are either identical in sound or very similar in sound but are sharply diverse in meaning for a comic effect। तो पन क्या है? कभी भी एक सेंटेंस के अंदर दो बार वर्ड्स का यूज होता है और वो एक फनी सेंस क्रिएट करता है, कॉमिक इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर। In it sometime two widely different meanings are drawn out of a single word, usually for comic, playful or witty purposes। James Joyce is generally regarded as one of the most compulsive or incorrigible punners of English literature in his Ulysses and Finnegan Wake। Okay, क्या है? The term quibble is also used as an equivalent for pun, और जो आपका क्विबल है वो भी पन की ही सेंस में यूज होता है। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रे मैन, एंड दीज लाइन्स आर फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट, एंड दीज आर द लाइन्स स्पोकन बाय मर्क्यूटियो ऑन ब्लीडिंग टू डेथ। मर्क्यूटियो बोलता है इन लाइनों को जब वो मर रहा होता है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन एम्बेसडर इज ए जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। यहाँ पर जो लाइज वर्ड है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो रहता है अब्रॉड, रहता है विदेश में रहता है, या लाइज विदेश में रह करके झूठ बोलता है। अब दोनों ही वर्ड आ रहा है पन इसके अंदर। हेयर इज ए पन ऑन द वर्ड लाइज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज आल्सो ए फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरॉन भी फिगर ऑफ स्पीच होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि ए पिथी और पैराडॉक्सिकल दो वर्ड्स होते हैं। ए पिथी पैराडॉक्स often involving two words making a sense despite apparent self contradiction। तो दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं वो एक साथ यूज होते हैं, जैसे
साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस की क्या साउंड होगी, ओके, या फिर साउंड ऑफ स्टिलनेस, डार्कनेस विजिबल, ये आपका पैराडाइज लॉस्ट में से है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट का एग्जाम हो, जिसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है वो ना पूछे जाएं। आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच फॉर यू, ओके, बट स्टिल देर आर सम मोर figure of speech also. Rhetorical question, a rhetorical question is a sentence in grammatical form of a question which is not asked in order to take an information or to make a reply, to invite a reply. तो rhetorical question एक प्रकार से ग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर एक क्वेश्चन होता है, लेकिन ये हमारे से रिप्लाई को डिमांड नहीं करता, ओके, बट टू अचीव expressive force different from a direct assertion. For example, is it not a shame instead of it is a shame. हम ये कह दें कि क्या ये शेम नहीं है, सीधा ही कहने के कि ये एक शेम है, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुल है वो हमें लगता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, वो यहाँ क्वेश्चन मार्क है वो डालना पड़ेगा, ओके, आई हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क, लेटर ऑन आई विल करेक्ट इट। नेक्स्ट इज दिस फिगर ऑफ स्पीच इज फेवरेट ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स। डब्ल्यू बी यीट्स की पोएम के अंदर रेटरिकल क्वेश्चंस बहुत यूज होता है। ए वेल नोन एग्जाम्पल इज अमंग स्कूल चिल्ड्रन विच एंड्स विद ए रेटरिकल क्वेश्चन, हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस। तो यहाँ पर रेटरिकल क्वेश्चन है वो यूज हुआ है, और ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, रिटन बाय डब्ल्यू बी यीट्स। सिमिलरली जॉन कीट्स ओड टू वेस्ट विंड एंड्स, और जॉन कीट्स की जो पोएम है ओड टू वेस्ट विंड है, वो भी एक रेटरिकल क्वेश्चन के साथ एंड होती है, और वो लाइन है ओ विंटर इफ Oh wind, if winter comes, can spring be far behind? Next is synecdoche. Synecdoche is a kind of monotony in which either a part is used to represent the whole or the whole represents a part. तो synecdoche के अंदर या तो एक पार्ट है वो पूरे को होल को रिप्रेजेंट करता है, या होल है वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंडिया वॉन द मैच, अब खेलने वाले तो 11 प्लेयर ही होते हैं, तो इंडिया वॉन द मैच हम कहेंगे कि पूरा इंडिया ही मैच जीत गया। या अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, ये अलेक्जेंडर पोप का एक कोट है। व्हेन माय बूजम वाज यंग, ओके, इसके अंदर भी साइनोक्टोच है। गिव अस दिस डे अवर डेली ब्रेड, इसके अंदर भी साइनोक्टोच है। कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिंथेसिया, ओके, इट मीन्स इन शॉर्ट सेंस ट्रांसफेरेंस। तो इसके अंदर सेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इट इज ए साइकोलॉजिकल टर्म फॉर एक्सपीरियंसिंग टू और मोर काइंड ऑफ सेंसेशंस व्हेन ओनली वन इज बीइंग स्टिमुलेटेड। तो एक सेंस हमारी स्टिमुलेट होती है, लेकिन दिखाया एक से ज्यादा जाता है। इन लिटरेचर द टर्म इज अप्लाइड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन काइंड ऑफ सेंसेशन इन टर्म ऑफ अनदर। जैसे जॉन कीट्स की ही लाइन है और टू नाइटिंगेल में से ली गई है। टास्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सन ब्रंट मिर्थ। अब लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है टेक्टोलॉजी। इट इज रेपिटेशन ऑफ सेम आइडिया इन डिफरेंट एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस ए ड्रामेटिक इफेक्ट। तो ये एक प्रकार का रेपिटेशन होता है जिसके अंदर एक ही बात को रिपीट किया जाता है एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एम आई नॉट ए मैन, हैव आई नॉट द लुक ऑफ ए मैन। ओके, तो आई हैव कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच, very simple. I have covered in my earlier video. You watch this video also, that video also. Okay, 10 figure of speech which are very important from examination point of view for different exams like KB, Navodayas, STAT exam, okay, or army recruitment exam, or
रीट एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं वो हमेशा आते हैं. आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, स्टिल 5 to 10 figures of speech are left. Okay, when time will permit me, I will make a video on those figures of speech also. If you like my video, share with it with your friends. Okay, thank you so much and have a nice day. You can take its screenshots also.